اب پیغام تو ہمارا ہمیشہ رہا ہے، چاہے وہ علم کے جلوس ہو چاہے تابوت کا جلوس ہو، جیسے 21 رمضان کا جو اور کے تابوت کا جلوس اٹھتا ہے، تو دیکھیے جوش اپنی جگہ پر ہوتا ہے، آدمی کو جوش ہوتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے تھا۔ جوش نقصان دہ ہوتا ہے جو بغیر ہوش کے ہو، یا تو اپنے باپ کا جنازہ بھی اسی طرح لے جاؤ گے، ایک آدمی اس کو اٹھاتا ہے، وہ اور وہ ایک آدمی اگر اٹھائے ہوئے ہو 25 روپے لٹک گئے تو اس کا کیا حشر ہوگا جو اٹھائے ہوئے۔ سب سے میری دستبانہ گزارش ہے کہ علم کو پکڑنے کی کوشش کے بجائے یہ کوشش کرے کہ علم شان و شوکت کے ساتھ جو مولا عباس کا علم کا جو شان عظمت ہے اس عظمت کے ساتھ بلندی کے ساتھ آئے۔ عباس نہ روتے آ گئے مشک آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں کہ جو اللہ کی نشانیوں کا، شعائر اللہ کا جو تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ ہمارے جتنے بھی تبرکات اعضاء ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے تابوت ہو، چاہے اس جناح ہو، یہ سب شاعر الہی میں شامل و داخل ہے، اور ان کی تعظیم و تقریب جو ہے واجب و لازم ہے، کیونکہ ان سب سے اللہ کے دین جو ہے وہ دنیا کے سامنے پہنچتا ہے، کربلا کی قربانیاں دنیا کے سامنے پہنچتی ہیں، اور اس کے لیے ایک جذبہ قربانی نوجوانوں میں اور بچوں میں پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو شاعر الہی کہا گیا ہے۔ یہ ہمارا جو علم ہے، جس کو علم فاتح فراد کے نام سے مشہور و معروف ہے، یہ ہماری ایک انجمن ہے جو انجمن رضاکاران حسینی، ان کے انتظام کے تحت یہ علم اٹھتا ہے۔ انجمن رضاکاران حسینی وہ میری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ 1950 میں کچھ جوانوں نے اس بات کو طے کیا کہ فرماب کے امام باڑے کی مجلسوں کی دیکھ بھال کے لیے، وہاں کے انتظامات کے لیے کہ انجمن بنائی جائے، کیونکہ سب سے بڑی مجلس جو لکھنؤ کی ہوتی ہے وہ شروع ہی سے بڑے فرماب ہی کے امام باڑے کی مجلس ہوتی ہے، جس پہ ہمیشہ سب سے زیادہ مجمع رہا ہے۔ تو یہاں انتظامات کی ضرورت تھی، اور کوئی انتظامات اتنے بڑے مجمع کا سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ تو انجمن رضاکاران حسینی کی تشکیل کی گئی، اور اس زمانے کے جو نوجوان تھے وہ اس پہ شریک ہوئے۔ اس کی تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ وہ قدیم لوگ جتنے تھے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو اسی انجمن کے تحت جو ہے پھر تہوا کا انجمن فاتح جو عالم فاتح فرات ہے وہ بھی اس کو اٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ یوم جناب زینب وہ بھی اسی انجمن کے تحت ہوتا ہے۔ عالم فاتح فرات کا ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ جناب فضل صاحب، سری شہر فضل صاحب، انہوں نے یہ تصور پیش کیا، کیونکہ جناب عباس کی شہادت جو تھی وہ دریا کے کنارے ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے امام حسین علم لے کر صرف آئے تھے، خیموں تک جو ہے وہ علم لے کر آئے تھے، اس کی یاد بنائی جائے۔ لہٰذا دریا سے سب سے قریب جو مسجد تھی وہی یہ مسجد جو اس وقت وہاں موجود ہے، جو دریا والی مسجد ہی کہلاتی ہے وہ، کیونکہ سب سے قریب تھی۔ تو وہاں طے ہوا کہ وہاں سے یہ علم اٹھایا جائے گا، اور امام باڑے فرماؤس بنایا جائے گا۔ نام اس کا رکھا گیا علم فاتح فرات، اور اس کی پہلی مجلس جو پڑھی تھی میرے ام محترم جناب مولانا کریم ثانی صاحب علیہ المقام میں پڑھی تھی، اسی لیے ابتدائی سے ان کا لقب تھا ذاکر فاتح فرات۔ آج بھی جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ذاکر فاتح فرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی مجلس پڑھنے والے وہی تھے، انہیں نے وہ مجلس وہ پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ جب باہر ملکوں میں جانے لگے تو پھر میرے والد مرحوم مولانا کریم صاحب قبلہ وہ مجلس پڑھتے رہے، اور ان کی زندگی میں بھی ایک آدھ بار میں نے مجلس پڑھی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد مستقل یہ خدمت میرے سپرد ہے، وہ مجلس میں پڑھتا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب اس کی شان ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہاں پر لائٹ نہیں تھی، اور بالکل اندھیرا رہتا تھا وہاں کا، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، بلکہ سڑک تک موجود نہیں تھی اس وقت۔ تو یہ طے ہوا کہ مشالے جو ہے لی جائے، تو اس زمانے میں تو بہت مشالے ہوتی تھی، 100 سوا 100 سے اوپر ہوتی تھی، اور تاکہ وہ پورا اس لیے مشالوں والا جلوس مشہور ہو گیا۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے مشالوں والا جلوس، تو پوری دنیا میں مشالوں کی والے جلوس کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس میں سینکڑوں مشالے لوگ ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے۔
لیکن کیونکہ اب ظاہر کہ ہر طرف روشنی ہے تو ان مشعلوں کی ضرورت تو نہیں رہی، لہٰذا صرف علامتی طور پر 14 مشعلیں اس میں رہتی ہیں تاکہ وہ یادگار باقی رہے پرانی، اگرچہ ان مشعلوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ 14 آگے رہتی ہے اور 14 جو ہوتی ہے وہ پیچھے رہتی ہے اس طرح سے، تاکہ وہ پرانی جو ہے روایت وہ باقی رہے۔ اور یہ امام الفرما پہ شب میں آتا ہے، اور پھر یہاں پر اختتامی مجلس یہاں کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں یہ مجلس جناب مولانا قائم مجلس صاحب علیہ المقامہ جو ہمارے خاندان کی بزرگ سے وہ پڑھتے تھے، تو پھر کچھ دن جناب مولانا محسن نواز صاحب نے یہ مجلس پڑھی، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم مولانا محسن نواز صاحب قبلہ، انہوں نے یہ مجلس خاتمے والی ہوتی مجلس وہ پڑھی تھی، اور اس کے اب مختلف علماء اس مجلس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی مختصر سی تاریخ علم فاتح فرات کی۔ بہت ہی شان و شوکت سے یہ جلوس اٹھتا ہے اور بہت زیادہ اس کو مجمع ہوتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ 8 محرم کو جو ہے شب میں یہ اٹھتا ہے، اور اس کا راستہ اس لیے تبدیل کر دیا گیا تھا کیونکہ درمیان میں کئی ہاسپٹل پڑتے ہیں، ایمرجنسی بھی وہاں پر ہو گئی ہے، لاری کا جو ہے ہارٹ کا ہاسپٹل بھی ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب جلوس چلا تو وہ جو تھی ایمبولینس جو ہے وہ مجمع میں پھنس گئی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا کربلا کا واقعہ جو ہے وہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، ہم خود تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں۔ لہٰذا اب سب نے قوم نے مل کے یہ طے کیا کہ اب زمانہ بدل گیا، لہٰذا راستے کو بھی تبدیل کیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد اب دوسرا راستہ ہے، بہت ہی شاندار راستہ، بہت ہی پرسکون راستہ، بہت ہی چوڑا، بہت میں سمجھتا ہوں کہ شان میں اضافہ ہو گیا ہے، راستہ تبدیل ہوتے علم کی شان میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اب بڑے امام باڑے کے سامنے سے گزرتا ہے، بڑے امام باڑے کے سامنے سے گزرتا ہے، قدیم امام باڑے، جس کی وجہ سے شان و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس سال بھی انشاءاللہ وہ اٹھے گا، اور اس میں مشعلیں بھی رہیں گی، اور اس میں ہمارے نوجوان جو ہے انجمن رضاکاران حسینی کے اس میں شریک ہوتے رہتے ہیں، اس کا انتظامات سنبھالتے ہیں۔ تو بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہندوستان اب اس داب سے اور جگہ بھی جلوس اٹھنے لگے، لیکن پہلا جلوس جو ہے وہ یہاں لکھنؤ میں، اور یہ یہاں سے دانیہ والی مسجد سے اٹھ کر اور یہ امام الفرما پہ آتا ہے۔ یہ مختصر سی ہسٹری کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب پیغام تو ہمارا ہمیشہ رہا ہے، چاہے وہ علم کے جلوس ہو، چاہے تابوت کا جلوس ہو، جیسے 21 رمضان کا جو علم کے تابوت کا جلوس اٹھتا ہے، تو دیکھیے جوش اپنی جگہ پر ہوتا ہے، آدمی کو جوش ہوتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے تھا۔ جوش نقصان دہ ہوتا ہے جو بغیر ہوش کے ہو، تو وہاں بھی شکایتیں ملی، میں نے اس کے لیے بھی کہا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ اب کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر لیا جا رہا ہے، کوئی ادھر لیا جا رہا ہے، معلوم تابوت جو ہے کبھی اس کھمبے سے ٹکرا رہا ہے، کبھی اس کھمبے سے ٹکرا رہا ہے، تو دیکھنے والوں کو ذرا سا اچھا نہیں لگتا تھا کہ کیسی بے احترامی ہے، کیا تم اپنے باپ کا جنازہ بھی اسی طرح سے لے جاؤ گے جس طرح سے بولا کہ تابوت لے جا رہے ہو، کہ کبھی ایک کھمبے سے ٹکرا رہا ہے، کبھی دوسرے کھمبے سے ٹکرا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، تو اپنے جس طرح سے باپ تو امت کے باپ ہیں وہ تو مولانا علی سے، تو ان کا جنازہ اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح جنازہ جاتا ہے اسی طرح جنازہ جانا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے اس میں بھی اپیل کی تھی، اور اس علم کے سلسلے میں بھی اپیل کی، مرتبہ شکایت ہوتی ہے کہ سب بچے اس میں لٹک جاتے ہیں، اس میں جوانوں پہ لٹک جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں کبھی کبھی بے حرمتی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کو اٹھاتا ہے، اور ایک آدمی اگر اٹھائے ہوئے اور 25 پہ لٹک گئے تو اس کا کیا حشر ہوگا جو اٹھائے ہوئے، تو اس کی وجہ سے بڑی زحمت ہوتی ہے۔ لہٰذا چومیں آپ اس کو، اس کا بوسہ دیں، لیکن اس میں کوئی لٹکنے کی کوشش نہ کرے، اس میں فائدہ کیا اس کے لٹکنے کا، ثواب بڑھ جائے گا اس میں، کوئی ثواب بڑھ نہیں جائے گا، ثواب گھٹ جائے گا، اس سے کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں، آپ اذیت پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ یہ بھی نوجوانوں سے اپیل ہے کہ بس بوسہ دے کے اس کو بس ہٹ جایا کریں، اسے لپٹنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ ہماری باہر کے بچوں سے نوجوانوں سے اپیل کری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انجمن رضاکاران حسینی یہ بہت پرانی انجمن ہے، یہ سن 55 میں دریا والی مسجد جو ہے وہاں سے 5-6 لوگوں نے جو تھے انہیں نے علم اٹھایا تھا 8 محرم کو۔ جب سے یہ سلسلہ قائم رہا، اس کے بعد سن 70 میں اس کو جو ہے قانونی شکل دے کے اس کو رجسٹر کرایا گیا، اور اس میں مولانا قلب عابد صاحب، افسر حسین صاحب
नवाब अख्तर हुसैन साहब, कल्बे सादिक साहब, और चौथे नंबर पर मैं मोहसिन रिजवी, और उसके बाद और लोग जो थे इसमें रजिस्टर्ड एसोसिएशन के मेंबर हुए। ये लोग सब फाउंडर मेंबर हैं रजिस्टर्ड एसोसिएशन के जो लोग। अब फ़िलहाल जो है इस वक्त सब ज़्यादातर लोग तो 99% मालूम हो चुके हैं, और हम ही बचे हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं अंजुमन को सदर की हैसियत से, क्योंकि कल्बे सादिक साहब नायब सदर थे और हम भी नायब सदर थे। कल्बे सादिक साहब के मौलाना के इंतकाल के बाद या उनके ज़िंदगी में उन्हीं ने हमें को सदर बना दिया था, और उन्होंने इस्तीफा सदर का अंजुमन का दे दिया था। तो जब से ये अंजुमन चल रही है, और इसका अलम फ़ातह फ़रात का नाम जो है फजल लखनवी साहब हमारे जौहरी मोहल्ला में अब क़याम था उनका, और भी उनके आले सब हैं वहाँ पे जौहरी मोहल्ले में। उन्हीं ने इसका नाम अलम फ़ातह फ़रात कहा था। और उसमें मशाल वाला जुलूस, क्योंकि उस वक्त लाइट का अरेंजमेंट उधर नहीं था, और दरिया वाली मस्जिद से लेके यहाँ उफरामाब तक, तो हम लोगों ने इसमें मशाल का सिलसिला कायम किया था। वो आज तक जो है वो कायम है। मशाल जो है वो आती है साथ में अंजुमन का आलम के साथ में। ये आलम फ़ातह फ़रात की बहुत पुराना आलम है, और जब से ये चला आ रहा है इसकी हिस्ट्री है इस वक्त। और इस वक्त जो है आपकी भी इंशाअल्लाह 8 मुहर्रम को आलम उठेगा अपने पुराने रिवायत के हिसाब से, और हम लोग सब लगे हुए हैं, हमारे अंजुमन के मेंबरान सब लगे हुए हैं इसको बेहतर तरीके से उठाया जाए। इसकी अभी बातचीत चल रही है। अंजुमन की मीटिंग, अगली मीटिंग में ये तय पाएगा कि इस अलम को कैसे बेहतर तरीके से दरिया वाली मस्जिद से या उफरामाब लाया जा सके। ये अभी इसकी पोजीशन है। इसकी मीटिंग होने जा रही है आज ही कल में। उसमें मौलाना कल्बे जवाब साहब भी होंगे, सब लोग उसमें होंगे पुराने मेंबर। वो इसमें इंतज़ाम बेहतर करने के लिए कोशिश की जाएगी इसकी। आवाम से तो हर साल अपील होती है और मौलाना कल्बे जवाब साहब भी, और भी मौलाना मीसम हैं, रहीदी साहब, ये सब अपील करते हैं कि भाई अलम को जो है ज़ियारत करके हटते आइए, बोसा देते आइए। मगर लोग जो हैं जवान हमारे जो हैं वो लिपट जाते हैं और वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो हम इस बार भी फिर इस साल भी अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग अलम को आगे बढ़ने दीजिए, उसमें जो है कोई बेदबी ना होने दीजिए। या हम आप लोगों से हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस तरह से अलम मिन्ना लिपटी है, भाई आपकी सही आने दीजिए। ये हमारी अपील है बुज़ुर्गों से भी कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि भाई ये अलम में इस तरह से जो है लिपटना और दुपट्टा जो है ठीक नहीं है। ये हमारी अपील है नौजवानों से, उन जुमनों से भी कि वो इसमें आगे आएँ और हम लोगों की मदद करें कि भाई इस तरह से अलम जो है कम से कम अपनी रवायत के हिसाब से बुलंद आ सके या उफरामाब तक। ये हमारी जो है एक अपील है नौजवानों से कि अलम में लिपटा चिमटा जो है वो झपटा ना मारें। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरा नाम साजिद हुसैन है। ये अंजुमन 1950 से तश्कील हुई थी और आज तक चली आ रही। अपने शान शौकत के साथ ये अलम फ़ातह फ़रात से बहुत मशहूर हुई है। अलम फ़ातह फ़रात अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी का एक बहुत अहम प्रोग्राम है जो 8 मुहर्रम को दरिया वाली मस्जिद से उठकर, और अब तो रास्ता थोड़ा सा बदल गया, ना पहले वो ट्रामा सेंटर होके आता था, अब ये बड़े इमामबाड़े होते हुए इमामबाड़ा उफरामाब की तरफ बढ़ता है। मैं इस अंजुमन में तकरीबन 91 से हूँ, जब से मेरे ससुर मरहूम इस अंजुमन में थे और उनके इंतकाल के बाद मैं इस अंजुमन में आया हूँ 91 से, जब से मैं खिदमत कर रहा हूँ। और ये अलम बहुत ही शान शौकत के साथ उठता है और उठता है रहेगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा हमारे उन नौजवानों से जो हमारे करीब 18 से 25 साल के हैं, एक दरख्वास्त है कि अलम उठाते वक्त थोड़ा जज्बात को कंट्रोल करते हुए अलम की तरफ थोड़ा सा धक्का मत दें। अलम को जिस शान शौकत से आना चाहिए
वैसे आने दें। हैदराबाद में भी अलम उठता है, हर जगह उठता है, हालांकि जितने भी अलम उठते हैं हिंदुस्तान में वो सब अलम फातह फुरात की नकल है, लेकिन फिर भी इस शान शौकत को बरकरार रखने के लिए मुझे अपने नौजवानों से एक ख़ास तौर से अपील है कि वो अलम की तरफ बिल्कुल धक्का ना दें, बल्कि अलम को बहुत बाहिफाजत लेके आए और दूर से ज़ियारत करें, बोसा दें और बहुत खूबसूरती से अलम को आने दें। ये अलम अपनी शान और शौकत के साथ मशालों के साथ निकलता है। सबसे आगे मशालें होती हैं और इसमें पीछे मशालें होती हैं। ये मशालें हम लोग की पहले तो यहाँ इमामबाड़ा गोफरामाप तक आती थी, लेकिन जब से ये अब अज़ादारी पे पाबंदी हटी है और उसके बाद दोबारा शुरू हुआ है, तकरीबन 23-24 साल पहले से ये फिर से अलम उठना शुरू हुआ है, जब से मशालों में थोड़ा सा लिमिटेशन हो गई है। कुछ मशालें आएंगी जिसमें मंडी के नुक्कड़ पे सारी मशालें बुझ जाती हैं और बाकी मशालें 5-6 मशालें हमारे मंडी लगाती हैं। हमारे अपने ख़ास तौर से नौजवानों के लिए अपील है, जो हमारे नौजवान बहुत जज्बात के साथ इस अलम फातह फुरात में आते हैं, बेशक आएँ, इससे अच्छा जज्बा आपका नहीं दिखेगा, लेकिन उन जज्बातों को ये देखिए कि हमारी अलम की शान शौकत बरकरार है। अलम में जिस तरीके से अब आजकल फ़िलहाल 2-3 साल 4 साल से आ रहा है, उसमें थोड़ा सा पटके में, सेहरे में थोड़ा सा तितर बितर हो जाता है। नहीं, हालांकि बहुत जलाली अलम है, जनाब अब्बास का अलम है। तो हमारे नौजवानों से सिर्फ यही एक ख़ास तौर से दरख्वास्त है हमारे बच्चों से, छोटे भाइयों से, कि इस अलम का एहतराम करें। और बाकी अलम फातह फुरात के नाम से अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी का नाम रोशन हुआ। अल्लाह के अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी के और भी प्रोग्राम है अलम फातह फुरात के साथ। यौम ज़ैनब भी अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी अपने 11 मुहर्रम को इमामबाड़ा गोफरामाप में मनाती है। इसमें शोराए कराम पढ़ते हैं और मजलिस होती है। शब आशूर में शबदारी होती है, इसमें चाय खाने वगैरह का इंतज़ाम होता है और बैतुल माल के अशरे का प्रोग्राम भी अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी सफ़र के पहले एतवार में करती थी। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से कुछ लोग और कर रहे हैं। मेरा दरख्वास्त अपने ख़ास तौर से नौजवानों से यही है कि अलम फातह फुरात को, यानी जनाब अब्बास के अलम को अपनी शान शौकत से आने के लिए पूरी अपना भरपूर सहयोग दे, मतलब अपनी मदद करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बहुत ही कम समय में, थोड़ा सा समय था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की है कि अपने जो अंजुमन में जब से ये अलम फातह फुरात उठ रहा है, उसमें जो भी लोग मेहनत करते हैं वो मेम्बरान यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं। सबसे पहले तो हम आप हज़रात से गुजारिश करेंगे कि एक सूरह फातिहा अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी के बानी और इस अंजुमन के जो अलम फातह फुरात के अलम बरदार रहे हैं जितने लोग भी, उन सब के नाम एक सूरह फातिहा पढ़ के बख्श दें। हमारी ये टीम पूरी मेंबर की मौजूद है और बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं। तो हमारे अलम बरदार जो इस अंजुमन के रहे हैं पुराने, वो सैयद मोहम्मद हारून साहब, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में रईस मियाँ भाई अब्बासिया के अलम बरदार थे, उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद मियाँ भाई अलम बरदारी करते थे अपने अंजुमन में और इस अंजुमन में भी रहते थे, उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद में हमारे मीसम भाई हैं और जो है वो अलम बरदारी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हम हसन इमाम अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी के अलम बरदार, और ये सब हमारे अंजुमन के, ये हमारे मेंबर नहीं, ये सब हमारी जान है और इन सब पे हमारा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पे इन सब की जान कुर्बान है। हमारी इतनी गुजारिश है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई मीसम भाई हैं, हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि इस अलम को बुलंद लाया जाए, लेकिन वो किसी न किसी वजह से कोई जो दुश्वारियों का दिक्कत का सामना आता है, उसकी वजह से वो कोशिश नाकाम हो जाती है। तो हमारी ये सब लोगों की राय रही है कि इस बार इंशाअल्लाह उसको अच्छे से, जो वहाँ पे एक सर्किल बना था, उसको अभी एक बाद में हम लोग उसके ऊपर डिसीज़न लेंगे कैसे करना है, लेकिन इस अलम के सिलसिले में हम ये चाहेंगे कि इस अलम को हमारे मीसम भाई और हम लोग सब लोग मिलकर उठाते रहे हैं। और इस अंजुमन की हिस्ट्री ये रही है, अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी
1950 में तश्कील हुई। 1905 में इसका जो है अलम फ़ातह फ़ुरात का नाम हुआ। सबसे पहले ज़ाकिर फ़ातह फ़ुरात डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक साहब इसके जो है ज़ाकिर रहे हैं। उसके बाद कल्ब आबिद साहब मरहूम ने इसको, सैयद कल्ब आबिद साहब मरहूम ने इसको ज़ाकरी के फ़राइज़ अंजाम दिया। अब सैयद मौलाना कल्ब जवाल नकवी साहब इसको खिताब फरमाते हैं। उसके बाद उठ करके वहाँ से इस हुसैनिया में आता है। जब ये अलम के साथ में जो दिक्कत और परेशानियाँ होती हैं वो सबके हमारी यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब की तरफ से एक मैसेज हम आवाम को ये देना चाहते हैं कि दस्तबस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो नौजवान, जो बच्चे, जो अलम के अंदर आ करके जज्बात में जो ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जिससे बदहुरमती होती है अलम की, उनसे गुजारिश है वो इसको ना करें। बहुत दूर दूर से लोग ज़ियारत के नियत से आते हैं, ज़ियारत नहीं हो पाती है। और हम लोग हमारी सारी टीम मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब, मोहसिन साहब, साजिद साहब, मीसम भाई, जुगनू भाई, अहमद, दानिश, खुर्रम, जो नहीं आ पाए हैं रोमिल, कासिम मियाँ भाई, इद्दी भाई और यूशी नवाब साहब के लड़के, हमारे चांद भाई, हमारे राजा भाई, ताबिश भाई, रईस मियाँ भाई के बेटे, मोहम्मद मियाँ भाई के बेटे, मैं किसके, यूसुफ, मोनिस, इब्राहिम भाई, ताबिश भाई, ये अपना जॉन, जो जितने लड़के हैं यहाँ पे, ये भैया हमारे बैठे अबुल भाई हैं। ये जब से अलम उठ रहा है हम लोगों की सारे सब लोगों की ये कोशिश रहती है, ये हमारे भाई हैं, उर्फी भाई हैं, और लोग बहुत से नहीं आ पाए हैं। उन सब लोगों की मेहनत ये रहती है कि वहाँ से अलम को सही से लाया जाए। बाकी हम जो बात नहीं अपनी कह पाए हैं, हमारे मीसम भाई जो है वो उस बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को इंशाल्लाह कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम कौम के बुजुर्गों से इतनी बात कहना चाहेंगे कि जो अपने बच्चे हैं, जो छोटे हैं, उनको बताया जाए कि कौम मतलब कि हमारे जो अलम है उसकी हुर्मत को पामाल ना होने दिया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल 14 साल के बच्चों को जो माँ बाप छोड़ देते हैं, उनसे खास करके हाथ जोड़ के गुजारिश ये है कि कम से कम जो है अलम में जब आएँ तो उनको बताया जाए कि इस अलम की हुर्मत क्या है। और उसमें लटकते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, अगर माँ बाप अगर थोड़ी सी भी हिदायत कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इस अलम को आसानी से लाया जा सकता है। और हमारे तमाम बुजुर्गों से अपील यही है कि वो बुजुर्ग जो हैं हमारे, उन बच्चों को ताकीद करें कि ताकि इन बच्चों अलम की जो है हमारी बेहुरमती ना होने पाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि जो अंजुमन के बानी थे सैयद मौलाना कल्ब आबिद साहब मरहूम, मौलाना सैयद कल्ब सादिक साहब मरहूम, अफसर हुसैन साहब मरहूम और जानी साहब मरहूम, जो मशाल से जो है जल के जिनका इंतकाल हो गया था, 11 मुहर्रम को उनकी मजलिस होती सारे सवाब की। यूसुफ अख्तर साहब मरहूम, यूसुफ साहब मरहूम, हादी नवाब साहब मरहूम, हारून साहब अलमबरदार रहे मरहूम, तकी हसन साहब मरहूम, इफ्तिखार चचा साहब मरहूम, हादी नवाब साहब, यूसुफ नवाब साहब मरहूम, के रज़ा साहब मरहूम, शमशीर साहब मरहूम और इनके कल्ब सादिक साहब के भाई मोहसिन साहब मरहूम और ये सुर्खी प्रेस वाले ज़हीर हसन साहब मरहूम, के रज़ा साहब मरहूम, नासिर साहब मरहूम कटरे में बजाजे में रहते थे और आबिद अली एडवोकेट साहब मरहूम और बहुत से रईस मियाँ भाई मरहूम, मोहम्मद मियाँ भाई मरहूम और जो भी लोग नहीं जितने भी लोग इस दुनिया से गुज़र गए हैं उन सब के नाम एक सूरह फातिहा पढ़ के बख्श दें। अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी जो 1950 में तश्कील हुई थी और जैसा कि इल्म में है कि 1905 में अलम फ़ातह फ़ुरात अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी इख्तियार है। इस अंजुमन में 19 मेंबरान रहे हैं मेन, उसके बाद में फिर वक्तन जो है वो बदलते रहे हैं। इसमें जैसा कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सैयद कल्ब आबिद साहब मरहूम, सैयद कल्ब सादिक साहब मरहूम, शमशीर साहब मरहूम और अफसर नवाब साहब मरहूम और इसमें सब मेंबरान रहे हैं और बाखर हसन साहब खाजिन वो अंजुमन के रहे हैं
हादी नवाब साहब रहे हैं, यूसुफ नवाब साहब रहे हैं, मोहसिन रिजवी एडवोकेट रहे हैं, हादी चचा रहे हैं बौची टोले वाले, और इसमें जो है वो शहरियार हसन उर्फ शेरू साहब और शरीफुल हसन, नाजिर खयामी साहब, और इसमें जो है वो उपा अब्बा हमारे हारून साहब मरहूम अलमबरदार, तकी हसन साहब उसमें अलमबरदार, बाद में फिर बड़े अब्बा के बाद खाजिन रहे, उसके बाद मैं खाजिन हसन इमाम, और अलमबरदारी का भी शरफ़ हसन इमाम को हासिल है। रईस मियाँ भाई अब्बासिया के जो अलमबरदार थे उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद मियाँ भाई जो इसके अंदर शाना बशाना शामिल रहते थे उनका भी इंतकाल हो गया, और ये सारे मरहूमीन, नासिर साहब भी ने भी इसमें खिदमत की, और पुराने मेंबरान में बहुत से मेंबरान हैं जिनको मुझे इस वक्त नाम नहीं याद हैं, और जो यहाँ पे जितने भी मेंबरान अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी के हैं उन सब के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन सबको ज़िंदा सलामत रहे और कार खैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस अंजुमन का मकसद ये है कि आलम फ़ातिह फ़ुरात ये अंजुमन जो प्रोग्राम करती है, मैं एक बार आपको याद दिला दूँ, इमाम बाड़े ग़ुफ़रा माफ़ में इंतज़ाम का काम जो है अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी के ज़िम्मे है। दरिया वाली मस्जिद में 8 मुहर्रम को जो आलम फ़ातिह फ़ुरात उठता है अपने रिवायती शान शौकत के साथ, वो अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी इंतज़ामात करती है। 9 मुहर्रम को शब आशूर जो हुसैनिया ग़ुफ़रान माफ़ दिलदार अली ख़ान ग़ुफ़रा माफ़ साहब में जो शब्बेदारी होती है उसके फ़राइज़ अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी जो है वो ख़िज़मत को अंजाम करती है। उसके अलावा यौम ज़ैनब हुसैनिया ग़ुफ़रा माफ़ में जो मुनक़्क़िद होता है उसको भी अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी जो है वो प्रोग्राम को करती है। उसके बाद फिर अशरा बैतुल माल है जो झाऊलाल के इमामबाड़े में सन 1960 से, हालांकि उससे पहले की भी है हिस्ट्री, लेकिन 1960 से अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी वहाँ क़िस्मत अंजाम देती चली आ रही है, और इब्तिदा में वहाँ पे ख़त्म प्रोग्राम में अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी मजलिस करवाती है। उसके अलावा शब चहलुम को अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी प्रोग्राम करती है इमामबाड़े ग़ुफ़रान माफ़ में। इन तमाम प्रोग्राम में आप तमामी हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। और ये जो शब चहलुम का प्रोग्राम होता है, पहले ये आलम इमाम बाड़े ग़ुफ़रा माफ़ से उठ के इमाम बाड़े तकी साहब में जाता था। बहरहाल अब वो जो है वो कुछ पाबंदियों की वजह से जो भी है बहुत से प्रोग्राम हैं जो नहीं पूरे हो पाते। हमारी गुजारिश है कि जिन प्रोग्रामों पे पाबंदियां लगी हैं कुछ प्रोग्राम और मिल जाए, और मेरी ये दुआ है कि जो ख़ास तौर से जो कौम के नौजवान और बच्चे जो इसके अंदर आते हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि हम आलम को बार बार पकड़ें, तो मेरी उनसे दस्तबाना गुजारिश है, ख़ास तौर से हमारे कौम के जो बुज़ुर्ग हैं, जो घर में औरतें हैं, वो अपने बच्चों को और नौजवानों को समझाएं कि दूर से बोसा लें। आलम की कोई भी जुलूस हो, चाहे वो 21 रमज़ान का हो, चाहे 18 का, चाहे वो जो भी प्रोग्राम हो, आलम चहलुम का हो और ये आलम फ़ातिह फ़ुरात हो, इसके अंदर नज़्म व ज़ब्त के साथ में आप और सब गिरिया करें, मातम करें। बाहर से कोई ऐसा मंज़र किसी को ना लगे कि खुदा ना करे कोई कुछ जो है वो बाहर वाला देखे कि कुछ और उसको महसूस हो। मैं बंद अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, इसको ऐसा ना करे कि ये लगे गमी का प्रोग्राम मौला अब्बास का आलम का है, हर आदमी का ज़दा हो और किसी के चेहरे पे मुस्कान ना हो, आलम का गिरिया हो, मातम हो, बीच में जो गैप होता वो ना हो, और आलम शान और शौकत के साथ हर एक की जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं उन सब से मेरी दस्तबाना गुजारिश है कि आलम को पकड़ने की कोशिश के बजाय ये कोशिश करे कि आलम शान और शौकत के साथ जो मौला अब्बास का आलम का जो शान अज़मत है उस अज़मत के साथ बुलंदी के साथ आए। और ख़ास तौर से हम एक गुजारिश और करेंगे कि जो ये बहुत ही बाबरकत महीना है, जिस ख़ानदान में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में अगर आपस में कुछ भी नाइत्तेफ़ाक़ी है तो मौला अब्बास के सदक़े में उसको भूल जाए, और एक होकर के जब हम एक रहेंगे, हम आपस में एकजुट रहेंगे। और तो बहुत बुरी बात है कि लोग कुछ न कुछ अपने आप में आके कहते हैं और लोग मुखबरी कर देते हैं, उससे गलत है। हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि एक हो जाए, ख़ानदान में, घर में, मोहल्ले में अगर नाइत्तेफ़ाक़ियाँ हैं तो मौला अब्बास का कसम है, उनको वास्ता है कि एक हो जाए। अगर भाई भाई में झगड़ा है तो वो एक हो जाए, भाई बहन में झगड़ा है तो वो एक हो जाए।
क्योंकि मौला ने इसीलिए एक ही के लिए तो कि कुर्बानी देंगे। कुर्बानी क्या थी? यही थी कि सब लोग एक रहे, उम्मत एक रहे हैं। तो सभी मजहब व मिल्लत के लोग अपने अपने परंपरागत तरीक़े से प्रोग्राम करते हैं और मुहर्रम को अपने अपने तरीक़े से मनाते हैं। हमारी ये गुजारिश है कि उसी तरीक़े से आप लोग काम करें। और एक बार फिर जिन लोगों को मैंने नाम लिए और जिनके नहीं ले पाया हूँ, उन सब के नाम एक सूरह, ख़ास तौर से अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी के जितने भी मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, जो अब इस दुनिया से गुजर चुके, और जुमला मोमिन मोमिनात जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उन सब के नाम एक सूरह फातिहा पढ़ के बख्श दो। ऊंचा रहे अपना ऊंचा